हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 9th का जो है सोशल साइंस, जो कि चैप्टर पहली है हिस्ट्री का। इसमें आज हम करेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी इतिहास का जो है चैप्टर फर्स्ट, फ्रांस की क्रांति। ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो बच्चे 9th क्लास में हैं और उनका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है, उसी व्यू से जो है ये क्वेश्चन बनाई जा रही है। ठीक है, तो अच्छे से इसको सोचिए, समझिए और इसको नोट डाउन अपने कॉपी पे कीजिए, तभी जो है आप अच्छे एग्जाम में जो है अंक प्राप्त कर सकते हो। त्रिपाण सेंटर का ये मानना है कि इससे अधिक कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो ही नहीं सकता और इससे अधिक कुछ आ नहीं सकता। आएगा भी तो इसी क्वेश्चन को जो है बना चढ़ा के दिया जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से जो है समझिए, सोचिए और विचार कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन आज क्या है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर इज द फोर्थ, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम व्यू। What was the condition of the women in France before the revolution? There is a most important question for the exam view. Okay, the repeated question here. What was the condition of a woman in France before the revolution? The answer here. The first point, the role of the women in France before the revolution, where all women were classless as a passive citizens. And they did not have a voting power. There is a not voting power for the women of the before the revolution. The worked as the seamstress or landrace and is a sold flower, fruits and vegetable are worked as a domestic servant. The woman they has worked to the is a seamstress, is a landrace and the sold flower, fruits and vegetables are worked as a domestical servant for the before the French Revolution. The condition of women. Their wages were lower than those of men. There is an important point. The wages were lower than those of the men. Their third point. And fourth here, they looked after their children, did the cooking, fetched and water and quenches for their bread. There is only this is work only women for the France before the revolution. They looked after their children, did the cooking, fetched and water and quenches for the bread. And the next year, fifth point, most women did not have access to the education or job training. Is an important point here. The most women did not have access to the education or job training. Only daughter of the wealth parents could be studied at the convent, after which they are married off. There is a condition of women in France before the revolution. It's a very bad condition for this time. The role of the woman is the France revolution, where all there is a classless as positive citizen and only domestical servant, and there is a wage were lower than to the man, and the children of there is a only all there is the cooking, fetching and water and square to the bread. And there is a most important, there is a most is a woman did not have access to the education or job training. Okay, यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्णता रखता है। इसमें यही बात क्वेश्चन में बताई गई है, क्रांति से पहले फ्रांस में महिलाओं की क्या स्थिति थी जब फ्रांस के रेवोल्यूशन हुआ, उससे पहले। ठीक है, समझ रहे हो क्वेश्चन का मतलब क्या है? फ्रांस के जो रेवोल्यूशन के बाद की बात नहीं कर रहा है, उससे पहले औरतों की क्या दशा थी, औरत को कैसा समझा जाता था समाज में। ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। देखिए, एक तो था क्रांति से पहले की दशा और एक था क्रांति के बाद की दशा। दोनों दशाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं औरतों की। तो यहाँ पर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रांति से पहले, यानी क्रांति होने से पहले जो महिलाओं की क्या स्थिति थी उनके समाज में। तो देखा जाए, पहला ही पॉइंट सब कुछ बता देता है। क्रांति से पहले फ्रांस में महिलाओं की भूमिका थी, सभी महिलाएं निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्ग थी, यानी सिर्फ एक नागरिक थी, उनको कोई अधिकार नहीं था, सिर्फ एक नागरिक थी, यानी सिटीजन थी वुमेन, सिर्फ कि मैं फ्रांस की नागरिक हूँ। उनके पास मतदान के अधिकार भी नहीं होते थे, यानी औरतों को जो है वोट देने का अधिकार भी फ्रांस में नहीं होता था। सिर्फ वो एक फ्रांस के नागरिक के रूप में ही जानी जाती थी, उनको कोई अधिकार नहीं दिया गया था।
दूसरी पॉइंट ये कहता है वह स्टेसियोलेंट्स के रूप में काम करती थी, जैसे फूल फल सब्जी बेचती थी, इतना ही काम था उनका। या घरेलू नौकरों के रूप में काम करती थी, यानी देखा जाए तो उनको कोई तरह के जो है राइट नहीं दिया गया था। ठीक है, सिर्फ जो है फूल बेचना फल सब्जियां बेचती थी और घर में जो है घरेलू काम करती थी, जैसे नौकर घर में काम करते रहते हैं उसी तरह जो है औरतों की हालत थी। ठीक है, तीसरी बात यही बताता है कि उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। जैसे आज भी हमारा इंडिया में भी होता है कि पुरुषों की जो है तनख्वाह अधिक होते हैं और स्त्रियों की तनख्वाह बहुत ही कम होता है। उसी तरह फ्रांस रेवोल्यूशन से पहले जो है महिलाओं की जो तनख्वाह होती थी वेज होती थी बहुत ही कम होती थी पुरुषों की तुलना में। वो अपने बच्चों की देखरेख करते थे, खाना बनाते थे, पानी लाते थे और रोटी के लिए कतार में खड़े रहते थे। ठीक है, तो यही काम होता था, घरेलू काम करते थे, उनको कोई भी राइट नहीं दिया गया था फ्रांस रेवोल्यूशन से पहले औरतों का। ठीक है, वो अपने बच्चों को देखभाल करते थे, खाना बनाते थे, पानी लाते थे, रोटी के लिए कतार में खड़े रहते थे। यही सिर्फ जो था महिलाओं की उस समय स्थिति थी। अधिकांश महिलाओं की शिक्षा या नौकरी प्रशिक्षण तक भी नहीं दी जाती थी, यानी देखा जाए तो औरतों को जो है किसी प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाती थी, उनको शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उनको कुछ तरह की शिक्षा नहीं दी जाती थी। केवल धनी माता पिता की बेटियां ही कन्वेंट स्कूल में जाके पढ़ सकती थी, जिसके बाद उनका विवाह कर दिया जाता था। यानी थोड़ा सा एजुकेशन जो था वो सिर्फ अमीर वर्गों में था, लेकिन गरीब वर्गों में था ही नहीं बिल्कुल ही। जैसे आज भी भारत में चले जाओगे, कहीं भी क्षेत्र गांव में चले जाओगे तो वहाँ पर जो है स्त्रियों को अधिक नहीं पढ़ाया जाता है, उनको कम ही पढ़ाया जाता है। और कई स्त्री तो अनपढ़ भी होते हैं, कहते कई लड़कियां तो अनपढ़ भी जिनको उनको पढ़ाया भी नहीं जाता है। तो बहुत ही कहते हैं यहाँ पर दुखदायक परिस्थिति आज भी इंडिया में भी है। तो फ्रांस में भी ऐसा ही होता था कि जितने भी औरतें थे उनके सभी अधिकारों को नष्ट कर दिया गया था फ्रांस रेवोल्यूशन से पहले। ना तो उनको वोट देने का अधिकार था, ना ही वो कोई काम कर सकती थी, सिर्फ फूल बेचना सब्जी बेचना और घरेलू नौकर की तरह वो दिन रात काम में लगी रहती थी। उनका जो अगर कहीं काम भी वो करती थी तो तनख्वाह जो होता था पुरुषों के तुलना में उनको बहुत ही कम तनख्वाह मिलता था। अगर मान लीजिए पुरुष को अगर 10,000 रुपया मिल रहा था तो स्त्री को जो है 6,000 8,000 से ही संतुष्ट रहना पड़ता था। तो बहुत काफ़ी अंतर देखने को मिल जाता था। सिर्फ उनका कार्य इतना होता था कि अपने बच्चों को देख रेख करना, खाना बनाना, पानी लाना और रोटी लेने के लिए कतार में खड़े रहना। और यहाँ तक कि अधिकांश औरतों को तो शिक्षा दी भी नहीं जाती थी, और दी भी जाती थी तो उच्च वर्ग में दी जाती थी, यानी अमीर लोग के घर में ही बच्चों को पढ़ाया जाता था और उनको से भी कोई काम नहीं करवाया जाता था, थोड़ा सा पढ़ाया जाता था, उसके बाद उनको मैरिज कर दी जाती थी। तो ये कंडीशन बहुत ही दयनीय थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफ़ी ज़रूरी था। इसका क्वेश्चन अगला जो है हम बात करेंगे जो ये फ्रांस से पहले की थी और उसके बाद फ्रांस के बाद क्या औरतों की स्थिति में चेंजेस आया, उसके विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आप इसी तरह त्रिपाण सेंटर के साथ बने रहें, और बने रहने के लिए आपको जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चाहिए, और साथ में अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। इससे ये होगा कि समय समय पे आपको जो है वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होगा, जिससे जो है आप एग्ज़ाम में अच्छे से जो है मार्क्स प्राप्त कर सकोगे।